Last time we studied about the divisions of biology. Now, how many divisions of biology are there? Do you remember? Three divisions of biology. Okay, number one. Number one, zoology. Yes. Number two, botany. Number three, microbiology. Okay. Now, what is zoology? Zoology is study of animals. Very good. And what is botany? Botany is study of plants. And what is microbiology? Microbiology is microorganisms. Microorganism, study of microorganisms. Study of Say like this. microorganisms. Which you cannot see with the naked eye. You have to use Microscope. very good. Now this is all you have studied last time. Yes. Today you are going to study about the branches of biology. Okay. Now we are studying about the morphology. Morphology is also one of the branch of biology, and in this branch we study about the external structure of any living organism. For example, we study external structure of living organisms. For example, heart, stomach, lungs. Now, morphology क्या है? Morphology में we study external structure of living organism. For example, heart है, stomach है, lungs है, kidney है. For example, kidneys also you can write down. Now, this is all morphology. You are just looking here. This is, suppose this is the heart, then stomach, and then comes lungs. These are all lungs, okay? And in the same way, this is the stomach. So in this way, we are studying about all these things. So this is apparently we use only, not internally we don't know about that कि heart अंदर से कैसा है, lungs अंदर से कैसे हैं, किडनी जो है अंदर से कैसा है, ये सब हमें किसी के बारे में भी कुछ नहीं पता. ये this is study, okay? So these are only the external study we are doing. Now what is the second one is anatomy. Morphology is of two types, okay? One is the external and the other is the internal. Internal morphology ko you can also say anatomy, okay? The another name of internal morphology is anatomy. So it is the study of the external structure, you can understand that, and this is anatomy is the internal structure of the study. Internal structure of living organisms. Okay, so this is the living internal structure. In anatomy, we are studying the internal structure of the living organisms. Okay, कैसे? अब जैसे सपोज लंग्स है, तो लंग्स को हम ओपन करेंगे, उसको डायसेक्शन करेंगे या कुछ करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? उसके अंदर उसकी जो छोटे छोटे के बने होंगे, जैसे आप उसमें अगर एयर डालें तो फूल जाते हैं, उनको हम एल्वियोली कहते हैं. तो पूरा हमें अंदर से सारी चीजें नजर आएंगी. फिर इस तरह हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर हम करेंगे, उसको कट करेंगे तो उसको पता लगेगा कि फोर, उसके कितने वो हैं, 4 डिवीजन है, इनटू 4 पार्ट. हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, वो हमें सारा नजर आएगा. इसी तरह स्टमक है, तो स्टमक कैसा है, उसकी अंदर से किस तरह की बनावट है, वो नजर आएगा. फिर इस तरह किडनी है, तो जब हम किडनी को कट करेंगे तो उसमें भी हमें सारी चीजें उसकी नजर आएंगी कि कितने उसके अंदर जो है वो निफ्रॉन्स हैं या रेनल वो जो है आपके पायरामिड्स हैं, वो सारी वो सब चीजें हमें नजर आएंगी. तो ये इस तरह हो गया. ये इसको हम कहेंगे फिर एनाटॉमी बन जाएगी. वो क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो सब चीजें क्या है? यही सेम चीजें, जैसे आपने किडनी किया, उसके बाद हार्ट किया, स्टमक किया, लंग्स किया, ये सारी चीजें जो है आपकी इसी में आती है. ठीक है, एनाटॉमी में. उसके बाद आता है अब दूसरा, थर्ड वाला क्या करेंगे आप? फिजियोलॉजी. अब फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजी में अब ये दोनों चीजें, मॉर्फोलॉजी भी हो गई,
एनाटॉमी भी होगी। मॉर्फोलॉजी दो तरह की है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल को जो है, एक्सटर्नल को मॉर्फोलॉजी ही कहेंगे, और इंटरनल का दूसरा नाम क्या है? एनाटॉमी। क्या नाम है दूसरा? वेरी गुड। अब उसके बाद फिजियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसका भी इसी बात से ताल्लुक है, इन दोनों से, कि अब उसके बाद जब आपने पढ़ा कि किडनी के बारे में पढ़ा आपने, हार्ट, स्टमक, लंग्स आपने सारे पढ़े। अब जो है फिजियोलॉजी में क्या है, इन सारे जो भी पार्ट्स हैं उनकी फंक्शन को पढ़ने को हम क्या कहेंगे कि वी आर स्टडिंग अबाउट दी फिजियोलॉजी ऑफ दी, हाँ, ऑफ दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है ना? तो फिजियोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी द फंक्शन, the function of living organisms। अब इसमें आपने सिर्फ देखा था, शक्ल देखी ऊपर से, इसमें आपने कट करके देखा उन पार्ट्स को। अब इसमें आप इन्हीं पार्ट्स के बारे में पता कर रहे हैं कि उनका फंक्शन क्या है। सपोज जैसे अभी आपने लिखा हार्ट, तो हार्ट का फंक्शन क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हार्ट का फंक्शन क्या है? क्या फंक्शन है हार्ट का? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये कर रहा है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। circulation of blood. Okay, now comes the second one is what? Stomach. Now stomach क्या करेगा? अब stomach को भी देखें। Now this one is stomach. स्टमक के में क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम आएगा इसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये स्टमक में कौन सा सिस्टम हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और लंग्स का ताल्लुक किससे है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे आप सांस लेते हैं ना, सांस लेने का जो है वो निजाम है। ये हो गया लंग्स का। हार्ट का ये आ गया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, लंग्स में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, और उसके बाद आपके सारे में नहा लो। किडनी में जो है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। किडनी में क्या है? हाँ, अब किडनी में क्या है? किडनी, अब ये इसमें फिजियोलॉजी में आपने ये पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी में उन्हीं सब पार्ट्स का आपने फंक्शन पढ़ लिया। तो हार्ट का फंक्शन है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। स्टमक में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, लंग्स में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी में आपने पढ़ा एक्सक्रीटरी बायोलॉजी। ओके, सेल बायोलॉजी। इसमें क्या पढ़ेंगे आप? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। व्हाट विल यू स्टडी? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेलिज्म। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स क्या है इसके? ये सब, इसके भी जो अंदर जो पार्ट्स होते हैं ना, जो सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, न्यूक्लियस होता है, और उसमें साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, जो आपने देखा था सारा। तो ये सब चीजें इसकी क्या कहलाती हैं? ऑर्गेनेल्स कहलाती हैं। अब उसके अंदर भी हम मजीद क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनेल्स जो है ये फिर सब ऑर्गेनेल्स हो जाते हैं। सब ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आएगा? सब में और होगा। देखें आप, ये सब ऑर्गेनेल्स में क्या है? और है। अब इसमें किस तरह की चीजें होंगी? जैसे न्यूक्लियाई है, और उसका क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब वो हम लिख नहीं रहे, बस मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सेल बायोलॉजी में हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ना है, और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है ऑर्गेनेल्स के पढ़ने हैं, और ऑर्गेनेल्स में भी सब ऑर्गेनेल्स जो है उनके पढ़ने हैं। तो ये सारी चीजें हमें चलाएंगी। और उसके बाद सेल डिवीजन भी है। सेल डिवीजन आपने पहले क्लास 8 में पढ़ी होगी। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में क्या है?
ये देखें, अब सेल डिवीजन में क्या पढ़ा था आपने, पहले पढ़ा है आपने माइटोसिस भी पढ़ा है और मायोसिस भी पढ़ा है, दोनों पढ़े हैं। तो ये हो गया आपका एक, इसमें ये आ गया माइटोसिस और दूसरा है एक ये हो गया एंड मायोसिस, ये हो गया मायोसिस। ओके, तो ये दो चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं सेल में। इसमें डिवीजन होती है सेल की, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह सेल की डिवीजन हो जाती है। तो ये आपका सारा इसमें समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स दी हिस्टोलॉजी, बल्कि ये मुझे वाकई पेन होता है इसमें, ये ऐसे कहने इसको मिटाते हैं ताकि ये इजी हो जाए लिखने में। हम आप लिखते हैं हिस्टोलॉजी, टिश्यूज एंड टिश्यूज ऑफ plants and cells। टिश्यूज आपको याद है क्या है, टिश्यूज किसे कहते हैं, ये सेल और सेल जब मिलते हैं, ये देखें सेल और सेल जब मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, टिश्यूज मिलते हैं। टिश्यूज ये नहीं है जो आप मेरे हाथ में टिश्यूज आप देख रहे हैं, ये नहीं, इसमें ये इसका मतलब ये वाला टिश्यूज है जिससे हमारी बॉडी में ये टिश्यूज बनते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड सेल्स हम दोनों का पढ़ रहे हैं, प्लांट का भी और एनिमल्स का भी, सॉरी यहाँ पर आई हैव रिटन रॉन्ग, ऑफ एनिमल्स। और एनिमल्स के अंदर जो है फैमिली में सब आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, ठीक है। और ये किसकी करते हैं हम, इसकी टिश्यूज की कर रहे हैं। और टिश्यूज क्या है, सेल और सेल मिलके क्या कहलाते हैं, Cell and cell join together, it makes tissues. very good, very good, very good. Now comes to the taxonomy. Now we are going to study about the taxonomy. Now taxo means what है, it is also a Greek word and this Greek word में से क्या है, taxes. Now taxes means what, taxes means arrangement. What is this, arrangement, arrangement। अब टैक्सेस का मतलब है अरेंजमेंट सिर्फ, और नोमोस का मतलब क्या होता है इसमें, नोमोस मीन्स क्या है, नेम। क्या नाम है इसका, नोमोस माने नेम, यानी नोमी, नोमी का जो लफ्ज जो आ रहा है यहाँ पर आपने देखा होगा, तो इसको क्या जाहिर कर रहा है, ये नोमी का वर्ड जाहिर क्या कर रहा है, नेम्स। क्या जाहिर कर रहा है ये, नेम्स। इसको नोमोस भी कहते हैं और नोमी भी कह सकते हैं, नोमोस भी कह सकते हैं। ये देखें ये, तो ये नोमोस मतलब ये क्या हुआ, नेम्स बन गया, क्या बन गया, नेम्स। तो ग्रीक वर्ड है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी मीन्स यानी अरेंजमेंट है, नामों की तरतीब करना। तो इसमें हम क्या करते हैं एक्चुअली, कि हम ये कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, इनटू ग्रुप में करते हैं और फिर सब ग्रुप में करते हैं, फिर उनको हम नेम्स देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो ये चीज कहलाती है। तो अब ये टैक्सोनॉमी क्या हुआ, मैं फिर एक दफा आपको रिपीट कर देती हूँ कि इट इज दैट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी in which we give the names to the living organism and divide them into groups and subgroups, not only the group but subgroups, and then we give the scientific names to that. For example, onion है, अब मिसाल के तौर पर अनियन कितना सिंपल सी बात है, प्याज, अनियन। अब उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा, एलियम सीपा। अनियन का क्या नाम है, एलियम सीपा। तो ऐसे ही तो मैंने एक मिसाल बताई है, और इसमें हमें इतना लंबा नहीं करना, हमें तो सिर्फ हर एक के बारे में, ब्रांच के बारे में पढ़ना है। तो आगे जाके आपको बहुत सारी चीजें होंगी, अगर आपने टैक्सोनॉमी पढ़ना होगा डिटेल में, तो आपको इन सब नाम जो हैं उसके साइंटिफिक नेम्स अलग मिलेंगे। आपको जेनेटिक्स कराती हूँ, ये आपको बंद कर देती हूँ। ये समझ गए आप अच्छी तरह। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ नेम्स, और डिवीजन ऑफ क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, ग्रुप में और सब ग्रुप में। क्या करते हैं, सब ग्रुप में, ग्रुप में पहले ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके सब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब genetics is also one of the branch of biology. Okay, now in this what we study about the genes.
इसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज के बारे में? जीन्स के बारे में। एंड रोल इन इनहेरिटेंस, और फिर उनका रोल भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इनका रोल किसमें पढ़ते हैं? रोल इन इनहेरिटेंस में। अब इनहेरिटेंस क्या चीज है ये मैं आपको बताती हूँ। इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, एक तो होता है जो हमें मरने के बाद पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कुछ मिलता है, वो इनहेरिटेंस थी। मगर यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमें उनसे जो उनकी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से जो अपने बच्चों को ट्रांसमिट होती हैं, यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? चिल्ड्रन। किसे कहते हैं ऑफस्प्रिंग? चिल्ड्रन। तो जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, किस चीज का ट्रांसमिशन होता है? ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन of characters from parents to offspring। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? चिल्ड्रन। क्या मतलब है इसका बेटा? चिल्ड्रन। यस। तो ऑफस्प्रिंग कहते हैं चिल्ड्रन को, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, ठीक है। तो इसमें जीन्स क्यों है? जीन्स का हमारा काम क्या पढ़ने का कि हम उसमें रोल इसका क्या रोल है, जीन्स का क्या रोल है इन इनहेरिटेंस, उस विरासत में जो ट्रांसमिशन हो रही है कैरेक्टर्स की फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, जो माँ बाप की तरफ से जो चीज ट्रांसफर हो रही है किसमें? बच्चों के अंदर। तो इसको हम पढ़ने को हम कहते हैं कि वी आर स्टडिंग अबाउट द जेनेटिक्स। ओके, नाउ दिस इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ओके, रिलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, ये क्या कहलाता है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम पढ़ क्या रहे हैं? हम यही पढ़ रहे हैं कि क्या ताल्लुक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके एनवायरनमेंट के साथ, उनके माहौल के साथ, उनका इर्द गिर्द का जो माहौल है, दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ओके, तो एनवायरनमेंट इज ऑलवेज नॉन लिविंग। और एनवायरनमेंट कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। ज़ाहिर है, आपके बाहर जो भी है, दरख्त है, पत्ते हैं, जमीन है, हम जिस पे खड़े हैं, ये सब हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। हवा है, हम सांस ले रहे हैं, तो ये सब नॉन लिविंग है। एनवायरनमेंट क्या है? नॉन लिविंग है। सराउंडिंग एंड कंडीशंस क्या है? अब उसके अकॉर्डिंग जो है लिविंग थिंग ग्रो करती है और डेवलप करती है। जैसी सराउंडिंग होगी उसके हिसाब से। अब प्लांट्स हैं तो उनको क्या जरूरत पड़ती है? उनको सॉइल की जरूरत पड़ती है, एयर की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको क्या होता है? दे टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, या टेक इन क्या है इजी वर्ड में, यानी ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना, इनहेल करना। दिस इज कॉल्ड इनहेल। एंड एक्सहेल मीन्स, दिस इज कॉल्ड एक्सहेल। तो वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर अवर लाइफ एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट, इट इज हार्मफुल। हाँ, इट इज हार्मफुल। कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाउ प्लांट्स को किस चीज की जरूरत पड़ती है अपने एनवायरमेंट में लेने की? सॉइल, हाँ, एयर एंड वाटर। वेरी गुड। और ह्यूमन बींग्स क्या लेते हैं एनवायरमेंट से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं और वापस एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। तो दिस इज ऑल एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट की जो भी हमारा डेवलपमेंट है या ग्रोथ है, वो किस पर डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल कंडीशन पे। किस पर डिपेंड करते हैं हम ग्रो होने के लिए? एनवायरमेंटल कंडीशन। वेरी गुड। Embryology is also one of the branch of biology. Okay, it is also called the developmental biology. One and the same thing. So because embryo जो है, the word embryo shows that something is developing. Now development of embryo क्या है? development of embryo, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहाँ पर हो रहा है? न्यू इंडिविजुअल में। एक नया मतलब जो है लिविंग थिंग, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ठीक है। तो जिस तरह क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड में क्या होता है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहाँ होते हैं? वोम किसका? मदर का, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी स्टेजेस होते हैं, तो उस वक्त ये क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है, एम्ब्रियो। और जब when the child comes in the world, then it is not embryo, then it is the human being पूरा। उस वक्त क्या होता है? वो एम्ब्रियो होता है, ठीक है। अब सेल जो है, सेल, अब एक मेल सेल है, एक फीमेल सेल है। जब वो दोनों सेल मिलते हैं, टू सेल, तो एक सेल बनता है जायगोट। और ये कैसा होता है? ये सिंगल सेल होता है। कैसा होता है? ये सिंगल सेल होता है। तो स्टडी ऑफ दिस जायगोट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी। तो एक्चुअली हम एम्ब्रियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं?
स्टडी ऑफ जायगोट करते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टडी इसकी पढ़ते हैं, ऑफ एम्ब्रियोलॉजी की। किससे पढ़ते हैं? जायगोट की। तो जायगोट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। और जायगोट क्या चीज है? दो सेल मिलके जो एक सिंगल सेल बना है, एक मेल का एक फीमेल सेल, दोनों मिलके एक सिंगल सेल बना है। टू सेल जमा हुए तो एक सेल बना, उसका नाम है जायगोट। और जायगोट जो है वो एक सिंगल सेल है, ओके। और उसकी स्टडी को आप क्या कहेंगे? कि हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। किसकी एम्ब्रियोलॉजी में किसकी स्टडी पढ़ते हैं? जायगोट की पढ़ते हैं। और ये कौन सा सेल है? सिंगल सेल। कैसा सेल है ये? सिंगल सेल। वेरी गुड। नाउ पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी क्या है? ये पैरासिटोलॉजी का लफ्ज जो है जाहिर कर रहा है क्या? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है? जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी, मगर ये डिपेंड करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। इनकी अपना मतलब रहने का तरीका क्या है? कि किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो दे टेक फूड एंड शेल्टर, ना सिर्फ फूड लेते हैं बल्कि वहां पर अपनी पनाहगाह भी ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद क्या है? ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है वो मैं भी आपको बताती हूँ। अब वायरस है। वायरसेस क्या है? ये वायरसेस भी, जो जितने भी वायरसेस हैं ये सब पैरासाइट्स हैं। जितने भी वायरस आते हैं ये सब पैरासाइट्स होते हैं। और वो पैरासाइट जो है जगह ढूंढते हैं और उसके साथ साथ अपना फूड भी ढूंढते हैं। तो पैरासाइट जो है क्या है? ये अब बहुत ही हार्मफुल है। हम क्या होते हैं ये पैरासाइट? हार्मफुल होते हैं। और किसके लिए हार्मफुल होते हैं? उन होस्ट के लिए जिनके ऊपर जाके ये बैठते हैं, शेल्टर वहां पर लेते हैं और उनको। और मिसाल के तौर पे क्या? लाइसिस क्या होती है? कि बहुत से बच्चों के देखा होगा अपने सर में हेयर पे जुएं वगैरह हो जाती हैं, तो वो भी वहां पर उनका ब्लड सक करती रहती हैं, उनकी स्किन से, वो सारा स्कल से करती हैं। तो वो भी हार्मफुल होंगी, ज़ाहिर उनके लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद आपका मॉस्किटोज आते हैं। मॉस्किटोज भी क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। ब्लड सक करते हैं और आके बैठते भी हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे? वैसे तो वो सारी वक्त नहीं बैठते, लाइसिस जो है वो बैठी रहती है। मॉस्किटोज का जो वो, अगर उन्होंने ब्लड सक किया, काटा, डंक मारा और चले जाए। वरना वैसे वो क्या हो, दिन भर कभी भी आपको सफाई करनी हो तो हमेशा अपने कर्टन्स के इधर आप सफाई करें, क्योंकि रात के वक्त वो, दिन में वो छुप जाते हैं किसी भी जगह जाकर, उसके बाद रात को निकलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं घर में सफाई सुथराई रखें, झाड़ पोंछ करें, वरना वो कर्टन में छुप जाते हैं। तो रात के वक्त जब ये आते हैं, निकलते हैं, मॉस्किटो से क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है बंदे को? इट कॉज मलेरिया। इट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन बीइंग्स ना। तो वो तो अपना काट लिया, उन्होंने ब्लड भी सक कर लिया, और उसके बाद क्या हुआ कि बंदे को क्या हो गया? मलेरिया हो गया, बुखार हो गया। अभी आपने देखा होगा डेंगू भी हो जाता है, इसकी डेंगू के अलग हर एक के होंगे, मॉस्किटोज होते हैं डिफरेंट टाइप के। तो इसमें फीमेल एनोफिलिस होती है, उसका नाम है फीमेल एनोफिलिस, यानी उसका साइंटिफिक नेम। तो वो इस तरह काटती है, ब्लड सक करती है, और उसके बाद क्या होता है कि उस बंदे को जिसको काटेंगे उसको क्या होगा? मलेरिया हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पैरासिटोलॉजी। तो पैरा चीज है, इसका काम चल रहा है। हमने क्या पढ़ा? पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइट्स क्या है? माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। और वो डिपेंड क्या करते हैं? किसके ऊपर? वेरी गुड। और क्या चीज लेते हैं? फूड एंड शेल्टर किससे लेते हैं? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। और ये वायरसेस क्या होते हैं? पैरासाइट्स। ये सब पैरासाइट्स होते हैं। और पैरासाइट्स में आपको एग्जांपल बताएं मुझे, क्या पैरासाइट्स होते हैं? पैरासाइट, लाइस, मॉस्किटो। वेरी गुड। लाइसिस कहाँ पर होती है? इन हियर। हेयर में, बालों में होती हैं। और मॉस्किटोज क्या होते हैं? कहीं भी दिन में होते हैं, रात को अमूमन जब हम आराम करते हैं तो वो आके दिन में भी काट सकते हैं, मगर रात में, मोस्टली रात में आते हैं, निकलते हैं अंधेरे में ज्यादा। तो वो क्या करते हैं? क्या चीज सक करते हैं आपका? ब्लड सक करते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है हमें? मलेरिया। वेरी गुड। फार्माकोलॉजी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके ना। फार्मेसी, अब इसमें जो फार्मा जो लफ्ज है ना, इससे हम थोड़ा थोड़ा क्या समझ रहे हैं? फार्मेसी, इसका मतलब नहीं है फार्मेसी, मगर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। और फार्मेसी का ताल्लुक किस चीज से होता है? मेडिसिन और ड्रग्स होता है। किससे ताल्लुक होता है? मेडिसिन और ड्रग्स होता है। अब मेडिसिन वो भी होती है जो आप लोग एंटीबायोटिक्स होती हैं, कोई भी दवाइयाँ होती हैं हमारी, वो सारी उसमें मेडिसिन आती है। और ड्रग्स में हर तरह की ड्रग है। कुछ ड्रग्स तो ऐसी होती है जो इस्तेमाल की हमारे होती है, कुछ ऐसी होती है जो लोग उसमें नशा करते हैं या कोई चीज़ करते हैं, तो वो भी उसकी। तो उन सब मेडिसिन का और ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है वो किसके ऊपर होता है? ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। तो इसका ताल्लुक क्या है? फार्माकोलॉजी का ताल्लुक किससे है? मेडिसिन और ड्रग्स से है। और उनका जो है इफेक्ट किस पर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर उसका असर होता है।
कि कीड़ा ना लगे या कुछ ना हो और फसल अच्छी रहे, उसमें जो दवाइयाँ डाली जाती हैं वो भी फार्माकोलॉजी में आती हैं, उनकी भी दवाइयाँ वो भी वही बनाते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओके। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। प्रैक्टिकल मीन्स यानी हम यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस का, यानी इनको अप्लाई कर रहे हैं, जो भी चीजें हमने बनाई हैं उसको हम कहाँ पर, किसके लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस पर कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। किस लिए, टू मेक सब्सटेंसेस, किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी हम ऐसी चीजें बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो मैनकाइंड के लिए, इंसानियत के लिए, उनके फायदे के लिए जरूरी होती हैं और उनके वेलफेयर के लिए। अब उसकी क्या मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पर मिल्क है, अब मिल्क से हमने क्या, उसमें बैक्टीरिया डाले तो क्या बना, कर्ड बन गई, दही। और दही ज़ाहिर एक यूजफुल चीज़ है जो हम मुख्तलिफ तरह से हम यूज़ करते हैं उसे, और हमारी सेहत के लिए भी, हर चीज़ के लिए। गर्मी में आप देखें हम लस्सी पीते हैं, उसको बना के कुछ करते हैं, और वैसे आप खाने में भी रखते हैं डिश के तौर पर। तो कर्ड जो है वो भी एक चीज़, एनर्जेटिक चीज़ है, जैसे आपका मिल्क है इस तरह ये भी फायदेमंद चीज़ है। तो अब एंटीबायोटिक्स में क्या बनाते हैं, इंसुलिन है जैसे। अब इंसुलिन वैसे तो हर इंसान में कुदरती तौर पर इंसुलिन जो है बनती है कहाँ, लीवर के साथ एक है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको पेंक्रियास कहते हैं। कैसा होता है वो शक्ल का, कि जैसे ये अगर आपका यहाँ पर ये इस तरह, तो यहाँ पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ ही की तरह है ये, समझिए। तो ये इसको हम, इसमें क्या होता है, इसमें पेंक्रियास, पेंक्रियास जो है ये पेंक्रियास है, इसके अंदर जो है इंसुलिन बनती है। और ये सब क्या है यहाँ पर, ये आपका लीवर है, ठीक है। तो लीवर के साथ ही एक हिस्सा होता है पेंक्रियास, उसमें इंसुलिन खुद ब खुद बनती है, और वो जो है उसमें ब्लड में जो है जब वो जा रहा होता है तो उसमें वो एंटर करती है, और वहाँ पर जो ब्लड के अंदर जो शुगर होती है उसको मतलब लेस कर देती है इंसुलिन खुद ब खुद, तो इंसान को शुगर नहीं होती। मगर जिसके अंदर से वो चीज़ खत्म हो जाती है, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, तो उसको जब इंसुलिन की जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल तौर पे इंसुलिन लेने की, या इंजेक्शन लेते हैं या वैसे वो लेते हैं दवा, तो उसके लिए फिर उनको एंटीबायोटिक से इंसुलिन की जरूरत। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंसुलिन, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी तो बहुत चीज़ें हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक मिल्क के बारे में बता दिया कि कर्ड बन गया किस तरह, और एक एंटीबायोटिक में इंसुलिन का दे दिया। आगे जब कोई डिटेल में पढ़ेगा तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। तो ये अब आपके समझ में आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में क्या है मेन चीज, कि ये कोई ना कोई चीज नई ऐसी बनाते हैं जो इंसानों के लिए फायदेमंद हो, मैनकाइंड के लिए फायदेमंद हो, उनके वेलफेयर के लिए बेहतर हो। तो उसमें क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक तो कर्ड है जो मिल्क से बनाई गई, उसमें आपने बैक्टीरिया एंटर करे, और दूसरी एंटीबायोटिक में क्या चीज है, इंसुलिन, ठीक है, जो डायबिटिक के पेशेंट के लिए बहुत काम आती है। Now comes the paleontology. Paleontology is also one of the branch of biology. And paleontology में हम क्या करते हैं? It is the study of the fossils. Now what is fossils? Fossils जो है remain of extinct organism. अब extinct क्या चीज़ है? This also I'll tell you. तो paleontology पहली बात आपको बताऊँ कि study है fossils. अब fossils क्या चीज़ है? Fossils जो है वो remain of extinct organism. बचा खुचा जो होता है ना, उनका दब जाता है रेत में, मट्टी में, मैदानों में, कहीं भी पुराने जमाने से जो चल रहा होता है, तो वो रिमेन्स जो होती है ना, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट वो ऑर्गेनिज्म है जो अब नहीं पाए जाते हैं, जो अब पैदा ही नहीं हो रहे, वो यानी अब वो खत्म हो गए, उनकी नस्ल खत्म हो गई, तो उनको कहा जाता है कि वो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म से पुराने। जैसे मिसाल के तौर पर अब उसको क्या करते हैं, वो डायनासोर है, तो ये इनकी फॉसिल्स जो है ना, फॉसिल्स कहते हैं, उनकी हड्डियां हैं बची कुची, कोई ढांचा है, कोई चीज है, कोई हड्डी है, कोई भी चीज हो, तो उसको कहा जाता है फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जो है वो पुराने, उनको पैलेंटोलॉजी में लोग उसको फॉसिल्स को खुदाई हो या कुछ हो उसको हासिल करते हैं, कुछ करते हैं। अब ये जो डायनासोर को उन्होंने बताया है कि डायनासोर बन गया, तो डायनासोर ऐसे नहीं, उन्होंने एक इमेजिनरी डायनासोर बनाया है, तो उनको कुछ हड्डियां मिली, कुछ स्केलेटन मिला उसका, तो उन्होंने पहले एक टुकड़ा कहीं से मिला वो जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई डायनासोर जो है वो ऐसा होगा। हालांकि हमने तो नहीं देखा डायनासोर, डायनासोर का एक अंदाजा लगाया गया है पैलेंटोलॉजी के अंदर स्टडी करके फॉसिल्स की, कि वो कैसा था डायनासोर। तो वो सिर्फ हमने उसकी फॉसिल्स देख के अंदाजा लगाया, तो वो रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे ही, जैसे मिसाल के तौर पर डायनासोर, अब उसकी नस्ल खत्म हो गई, मगर हमने सिर्फ उसको फॉसिल से पढ़ के पता लगा। तो आप पता लगा पैलेंटोलॉजी में क्या है, एग्जाम्पल बताएं किसका है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स है। फॉसिल्स किसे कहते हैं?
fossils, बची हड्डियों। कुछ हड्डियां जो पुरानी उनकी कहीं दब गई हैं, कुछ है वो खुदाई में निकल आई, कुछ हुआ, तो उसको कहते हैं फॉसिल्स। और वो फॉसिल जो है वो किसके हैं? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स वॉज एक्सटिंक्ट कौन से? जो अब नहीं पैदा हो अब रहे, नहीं पैदा। अब उनकी नस्ल खत्म हो चुकी है, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ओके। और सोशियो बायोलॉजी क्या है? सोशल बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सोशियो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल बिहेवियर पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कैसे सोशल बिहेवियर? ये है कि हम ऐसे अकेले तो नहीं बैठ गए घर में, वी आर जस्ट लिविंग टुगेदर, लोगों के साथ हैं। आप जाएंगे परचेज करने जाएंगे तो अपना कोई फूड के लिए सामान लेने जा रहे हैं, आप अपने कपड़े पहनने के लिए जा रहे हैं, कोई चीज ले जा रहे हैं, तो मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन क्या है? एक सोशल एनिमल है, और वो सोसाइटीज बनाता है अपनी, और उसके अंदर वो रहता है। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी होगी हमारी, कि हमारा बिहेवियर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ कैसा है। ये सब चीज मिला के क्या कहलाती है? सोशल बिहेवियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लोगों के साथ, और उसके अलावा क्या है? सोसाइटीज बनाते हैं। ठीक है। अब आ गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? अब वैसे तो आपको पता है आंट तो क्या है? चींटी होती है, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है, एक मिसाल के तौर पर, तो आप इसमें इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। किसकी? इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। और इंसेक्ट की क्या खास बात है कि 6 लेग्स होती हैं। हर इंसेक्ट में एक खास बात बताऊं आपको, कितनी लेग्स होती हैं? 6 लेग्स होती हैं। तो एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एवरी इंसेक्ट जो भी है, कोई उड़ने वाला है, कोई जमीन पर करने वाला है, कोई पौधों में है, कोई प्लांट्स में है, कोई कहीं पर है, कोई वॉल पर है, तो ये सारे जो कहलाते हैं इंसेक्ट कहलाते हैं। और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। 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 वेरी गुड। अब आपको मैंने जितनी भी सारी ब्रांचेस बताई हैं आपके समझ में आ गई हैं। आप मैंने क्वेश्चन करे, मुझे अंदाजा हो गया आपको आ रहा है, तो अब आप एक काम करिएगा, जितने भी मैं आपको उसके नोट्स भी अलग दे दूंगी, वो आप अपनी कॉपी में लिख लें और उसको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि आपको इम्तिहान में ये कुछ भी आ सकता है। फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा, ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, किसी भी तरह आ जाएगा। तो अब आपने अगर अच्छी तरह पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह ताला आप अच्छा इम्तिहान में अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। ठीक है, ओके।